Well, I think if anyone knows Sukriti and me, तो उनको ये पता है कि जब भी हमारा गाना रिलीज होता है हम बहुत 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 एक्साइटेड होते हैं, जैसे सब लोग एक्साइटेड होते हैं. But we are always looking out for comments, feedback. हम हर जगह मतलब YouTube पे comments पढ़ रहे हैं. We're literally going and reading every single comment on Instagram because we're very very excited. Sukriti and I are collaborating after our last single, which was I think in Feb. तो थोड़ा टाइम हो गया है, and I think the all our followers and fans are really waiting कि हमारा next गाना कब आएगा. And दोबारा happens to be our first romantic single. Yeah. So just it's different from all of our other songs, and I think that's why we were very excited to see and hear what everyone has to say, and the response has been really overwhelming so far. आपने गाना सुना है कि नहीं अभी तक? सुनो. Okay, great. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. पहले 1000 व्यू में मेरा व्यू था. अच्छा, amazing. मैं आप लोग से जानना चाहूँगा, जिस तरह का मुझे स्टोरी लगा काफ़ी अमेजिंग है, ट्विन सिस्टर की स्टोरी है, बट इन रियल लाइफ मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछूंगा. इन रियल लाइफ आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक ही लड़कों के दोनों का दिल आ जाता है? क्योंकि ट्विंस लोग की तो ऐसी होती है वो तो बात. स्टोरी बिल्कुल है ही नहीं. It's हाँ, just I think लड़के दो parallel. है गाने में. हाँ पता है, उनका बट सिर्फ surname एक हाँ जैसा है. सरनेम एक जैसा है. एक जैसा नहीं, एक ही है. हाँ, तो ऐसा कभी लाइक हुआ है इन रियल लाइफ? Actually बहुत I'm surprised you asked this question because I think जब भी हम गाने बनाते हैं, especially our independent non-film music, we always get inspired by personal events. हमारी लाइफ में जो भी पर्सनली होता है, we try to obviously make songs around that. I think वो बहुत important है हमारे लिए कि हम अपने experiences, हमारे friends के experiences गानों के ज़रिए share करें. But yeah, I think finally we both have been heartbroken together once. And for we liked different the reasons. same guy also once. तो That was long ago. एक ही बार हुआ है लाइफ में, and I hope एक ही बार हो. But I remember of course sometime in 2020 हम दोनों का ब्रेकअप एक साथ हुआ था. ये शायद मैंने बोल दिया है. But it was like around the same month in the same week. It was very weird. ये ऐसा नहीं होता है ट्विंस के साथ, but हमारे साथ हुआ था. So I think we obviously derived a little bit of inspiration from there. सो इफ़ यू टॉक अबाउट दोबारा, ये आपने कंपोज भी किया हुआ है गाना, तो कोई स्पेसिफिक सॉन्ग होते हैं जिसको आप कंपोज करती हो, या किस तरह की सॉन्ग कंपोज करना पसंद करती हो? आई थिंक ये मूड पे भी कभी कभी डिपेंड करता है. आई थिंक हमारे ऑलमोस्ट सारे जितने भी सिंगर्स हैं हैव बिन थोड़ा इंक्लाइंड टुवर्ड्स द डांस स्पेस, बट आई थिंक द मूड एंड द वाइब इस साल की, आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक आगे भी जो गाने आने वाले हैं आर टुवर्ड्स द रोमांटिक जोन. It's just something that we were feeling in the moment, and I think इस साल this genre you can expect a little more. एंड ऑडियंस से किस तरह के लाइक रिस्पॉन्स आप लोग एक्सपेक्ट करते हो? कोई भी सॉन्ग आते हैं तो एक कॉमन रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये रिस्पॉन्स आना चाहिए ऑडियंस की तरफ से? आई थिंक जो हमारे लिसनर्स एंड फॉलोअर्स हैं वो बहुत ही जेन्युइन है, एंड वो हमसे भी आई थिंक दे लाइक 20, 22, 18, 17, they all go to school, college and all of that. Yeah. So I think they are very very genuine and we have a very good relationship with them. कि हमेशा हम पूछते हैं उनसे कि what kind of music are you expecting, what do you want us to be, and what do you want our music to sound like. And every time I think वो हमें हमेशा बताते हैं that हमने ये देख लिया, we want a romantic single. So एक साल से ये चल रहा था, and finally I think they wanted a love song and we gave them a love song. Yes. And also we wanted to kind of do something different from everything that we are doing. And I think love songs की capacity में of course हमने films के लिए गाने गाए हैं, but हमने playback के अलावा we've never really featured in a love song and composed. So I think the thought process of me and Sukriti was that instead of waiting for like a song to happen to us, we have to kind of create it. क्योंकि I feel like it's a great time to be around. There's some sort of music for everyone. Everybody has their own playlist. सब लोग जब उनको कोई भी तरह का गाना सुनना है तो वो Spotify पे ढूंढ लेते हैं. I think there is something for everyone and सब genres and सब styles of music की आज एक audience है. So and we try and ask all the fans and all the listeners that what kind of music are you listening to. Yes. वो बहुत important है because I feel like आज का ऐसा time ऐसा चल रहा है that music is constantly evolving. सब लोग को कुछ नया चाहिए, and there's always that one song that comes and changes the soundscape for some time.
तो दोबारा ऑफ कोर्स वाज समथिंग दैट वी वर वेरी श्योर कि हमें इस साल ही रिलीज़ करना है, क्योंकि एक साल से वो हमारे पास था गाना हमारे फ़ोन्स पे, बट नाउ टुडे इज़ व्हेन इट्स सीइंग द लाइट ऑफ द डे, तो सब लोगों के पास है आज वो गाना, एंड आई एम श्योर पीपल विल एंजॉय इट। एंड मैं आप लोग की बात करूँ, द कक्कर सिस्टर्स की मैं बात करूँ, हमेशा ट्विनिंग करते हो, आज ट्विनिंग नहीं कर रहे, कुछ इसके पीछे कुछ रीज़न है? इज देयर एनीथिंग सॉन्ग को लेके कुछ ऐसा है या नहीं? आई थिंक लाइक आई सेड, ये बहुत मूड पे भी डिपेंड करता है, हम बोर भी हो जाते हैं ट्विन करके, मतलब Yes. रोज हाउ मच कैन वी ट्विन, यू नो। एंड वी आर नॉट ट्विनिंग इन दिस सॉन्ग, सिर्फ हमारा बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट हो रहा है बट क्योंकि बर्थडे आई साथ एम है। टॉकिंग अबाउट टुडेज लुक, Yeah. क्योंकि मैं हमेशा whenever I see you in the events, सॉन्ग जो भी हो XYZ, आप लोग हमेशा एक Yeah, ही we जैसे try. ट्विन करते हो, आज कुछ अलग लग रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूँ। तो वो अच्छा है कि नहीं है? अच्छा, It's good, It's but good. is there You're anything? not missing the twinning. Yeah, I personally missing it. Okay, I think we'll see you later today at GQ Awards. If you're gonna be there, then we'll twin there for sure. Yeah. That time I asked the question. Done. No, but I think Prakriti wanted to tie her hair today. I didn't want to tie my hair. Yeah, I so was just, it was just you know, that. I was just bored. I needed some change, and I don't know. Like she said, mood पे depend करता है, and I was just like, today we're wearing similar colors, so at least hair should be a little different. I don't know. ऐसा लगा मुझे। शूट की बात करें तो कोई भी शूट, कोई भी प्रोजेक्ट करे तो एक मेमोरीज बन जाती है, तो शूट करते समय कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट कोई शेयर करना चाहते हो? बहुत सारे आई थिंक ऐसे इंटरेस्टिंग मोमेंट। आई थिंक ऑलवेज व्हेन मी एंड सुकृति आर शूटिंग, एवरीवन्स फेवरेट गेम इज हु इज सुकृति एंड हु इज प्रकृति, तो उसी में आधा टाइम निकल जाता है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लाइक इवन द एक्टर्स Yes. डिड नॉट नो हु सुकृति एंड हु प्रकृति वाज फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, but other than that I think it was a very new experience also for us, you know, acting behind the camera. Usually सारे हमारे music videos में हम dance करते हैं, we're performing more than acting, you know, so I think it was a lot of fun. पहली बार glycerine का experience हुआ and it was I think, you know, there were a lot of emotions on set obviously because the song is like that, so I think doing something new every time is a lot of fun, and we want to always continue experimenting and doing something new with each and every music video. So, बट सबसे चैलेंजिंग क्या रहता है? साथ में काम करना, कंपोज करना, सिंग करना, परफॉर्म करना, बहुत सारी चीज़ें आप लोग करते हो, बट एज एन सिस्टर सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहता है? I think pertaining to दोबारा हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट था एक्टिंग, क्योंकि ये पहला म्यूज़िक वीडियो है जहाँ पे you know it's all really about the emotions, it's how you portray the emotion on screen, क्योंकि हमारे हर सॉन्ग में एक हुक स्टेप रहता है, एक कोरियोग्राफी रहती है, लिप सिंक होता है, and it's, you know, it's that Easier. pop star dance performance vibe, and this was a very girl next door sort of a song. We really just had to be ourselves. Personal experiences जो हमने feel खुद किए हैं अपनी लाइफ में, वो पोर्ट्रे करना था कैमरा के सामने, and it was like you know, our brother-in-law has directed the video, and I remember him just saying through the whole shoot, just think about your breakup, just think about your breakup. It was really just that, you know, क्योंकि पहले हमने किसी भी वीडियो में एक्टिंग पर से नहीं Yeah. की है, तो इस वीडियो में you know, we really had to put that emotion across. जो emotion के साथ हमने गाना बनाया था, वो बहुत important था that people feel, you know, what we felt while making the song. So I think that was the biggest challenge. तो ये सवाल ऑडियंस का है कि जब ट्विन सिस्टर्स या कोई भी भाई बहन हो, उनमें थोड़ा कैट फाइट, झगड़ा cat fight, such a झगड़ा Bollywood वगैरह, word ना, this is cat fight. ये सब होता तो है। हो सकती है, हाँ, हो सकती है। पर आप लोग में तो इतना प्यार दिखता है, कैट फाइट का तो नहीं, प्यार तो 100% है, बट आई एम श्योर यहाँ पे सबके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, एंड यू नो दैट दे ब्रिंग आउट द वर्स्ट एंड द बेस्ट लड़ाई तो इन होती यू. है, अगर लड़ाई नहीं होगी तो बहुत बोर हो जाएंगे एक साथ। मतलब हमारे सेम फ्रेंड्स हैं, हम बाहर भी पार्टी करने भी एक साथ जाते हैं, काम करने भी एक साथ जाते हैं, सो व्हेन यू स्पेंड ऑल योर टाइम विद समवन, लड़ाई तो होती है, यू नो। बट आई थिंक हमारे कभी भी क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं होते, पर्सनल डिफरेंसेस, या मतलब इसने मेरे कपड़े पहन लिए या फिर ये नहीं बताया, यू नो, स्मॉल थिंग्स लाइक दैट हैपन, बट जब काम की बात होती है क्रिएटिवली वी आर ऑलवेज ऑन द सेम पेज, सो दैट वी डोंट And फाइट अगर अबाउट. होते भी है creative differences, it's for the higher good, so we always sort it out. Yeah. कंपोज करना, लाइक कंपोज भी आप लोग करते हो, तो व्हाट्स योर मेन फोकस, सिंगिंग अ सॉन्ग और कंपोजिंग अ सॉन्ग? दोनों से सवाल रहेगा मेरा ये। और चैलेंज किस में ज़्यादा लगता है आप लोग को? कंपोज में लाइक
अलग थॉट प्रोसेस रहता है, Yeah. सिंगिंग में अलग थॉट प्रोसेस रहता है, तो कुछ आप बताना चाहोगे उसके बारे में? आई थिंक हम दोनों की जब जर्नी स्टार्ट हुई थी इन 2015, हमने सबसे पहला बॉलीवुड के लिए गाया था। आई सैंग द सॉन्ग इन दिल धड़कने दो, प्रकृति सैंग और पहली बार कॉर्ड पहली Because बार that- या Yes. पहली बार एक्चुअली बॉलीवुड में गाया था। एंड प्रकृति, हम दोनों का डेब्यू आई थिंक इट वाज इन द सेम ईयर। And I think the songs were so different. Like my first song was the song called Katra Katra, which was of Bipasha Basu, and I was only 19 years old at that time. So you know, तब जैसे हमारी जर्नी शुरू हुई थी, of course at that time singing just kind of meant playback singing. Yes. And तब हम फॉर एक्ट्रेसेस, for actresses. मूवीज And I think तब हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन we'll compose our songs. That was not our thought process. That at the wasn't time. even the dream, हमें करना भी नहीं था। We always only wanted to sing for movies. But I think after that it took a few years जहाँ पे independent music became so much bigger. Yeah. I think जब हम कहीं पे भी जाते हैं आजकल, लोग सिर्फ independent music ही बजा रहे हैं, you know, it's happening. So it gives us room, I think, as a singer, as an aspiring singer also, for all new musicians also, it's very important that you also write your song. Yes. Song writer होना भी बहुत बहुत important Yeah, है। and at least I think everybody should learn to compose, you know. In so many interviews that we give, everyone asks us कि एक ऐसी कौन सी actress है जिस पे आपकी voice suit करती है सबसे ज़्यादा. And I think every time Sukriti and I felt like, I don't know about actors, but I think my voice suits me the most. So I think that was the dream since we were very little, that we want to feature in our music videos. And क्योंकि we're such 90s kids, we've seen how the 90s indie pop scene evolved, and then it was Bollywood music, and we always wanted to do, that was the big dream at the time. So I think composing is something that's that we like to do, क्योंकि अगर आप एक गाने की creative process में होते हो, I think it's important to Yes. you know be a part of it. Otherwise if somebody just kind of composes a song for you, मुझे लगता नहीं कि वो आपका खुद का गाना होता है. So to take these creative calls, you know, कि lyrics क्या होंगे, feel क्या होगी, vibe क्या होगी, styling कैसी होगी, ये सब हम खुद करते हैं. And I think it's very important because But I that's how think we move composing on. also कभी कभी ही होता है, हमेशा नहीं होता. So not for every song, but जब भी I think instinctively कुछ आता है, then we try to put it into a song. बट Otherwise, मैं बोलना चाहूँगा, लाइक आपने इंडिपेंडेंट सॉन्ग की मैं बात की है, पर मैं जब 10 साल पहले जाए, इतने म्यूज़िक एल्बम नहीं थे जो आज के टाइम पे है हाँ. म्यूज़िक एल्बम. तो आप लोग को लगता है कि ये जो टैलेंट आते हैं, नए टैलेंट, आप लोग को तो काफ़ी लोग जानते हैं, बट अब जो टैलेंट आ रहे हैं वो लोग को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है अब आने वाले समय में? अभी मैं 10 साल बाद की बात करूँ तो Absolutely. कितनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि Absolutely. पहले तो यू हैव जस्ट म्यूजिक, फिल्म में गाना गाओ या फिर यू हैव टू परफॉर्म समवेयर, बट नाउ देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटी. तो आप लोग को लगता है अपॉर्चुनिटी खुलेगी और आने वाले समय में? आप तो 10 साल बाद की बात कर रहे हो, उसका तो मतलब यहाँ पे तो हर 6 महीने चीजें Yes. चेंज हो रही हैं. 6 महीने So- में I think every 2 weeks there is some new song that's breaking out, and sometimes it's nothing to do with doing, you know, having a film song. It's like एक गाना अगर ट्रेंड कर जाता है एंड वो किसी भी लेवल पे रिलीज होता है, just becomes a new flavor. जिसका So- म्यूजिक वीडियो भी नहीं हो शायद, you know. So So Correct. I like think say AP Dillon for instance, you know, like none of his, you know, music songs have music videos, but everyone knows his song, and I think that's the power of releasing a song in today's time. You don't you release a song that you believe in, and क्योंकि opportunities इतनी ज़्यादा हैं, platforms इतने ज़्यादा हैं, आप रिलीज़ कर दो म्यूज़िक, एंड यू नो इफ इट वर्क्स देन यू आर बाय योरसेल्फ, यू आर एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम टू बी अराउंड, एंड देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, सो इट्स अमेजिंग. आई थिंक 10 years में तो पता ही नहीं क्या होगा. काफी लंबा बोल दिया मैंने. लास्टली बिफोर एंडिंग दिस, 2 लाइनें तो सुनना चाहूंगा मैं आप लोग. Absolutely. कैमरा हम अकेले So this is the hook line of the song. हम पूरा गाना भी गाएंगे, but this is a little snippet for everyone watching. मिलके जहाँ जुदा हुए थे आखिरी दफा, आजा चले वहीं पे दोबारा, लगता नहीं कहीं भी दिल मेरा तेरे बिना, आजा चले वहीं पे दोबारा. हाँ. Thank you.